Hello friends and a very good morning to all of you. I Anchal welcome you all on this session and today we'll be discussing phrase replacement के कुछ questions and very sorry थोड़ा सा delay हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, आपको बोला था 2 मिनट में आ रहे तो मैगी बन गई अब और अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है. चलो let's start with this and आज का जो phrase replacement का question है that is based on grammar. As you all know phrase replacement के questions में grammar ही आता है. होगा क्या, what is there, what do we have to do? You have a statement, आपके पास एक statement given है, उस statement में one part of it is underlined. ठीक है, question में there's a statement, in that statement one part of it is underlined. You have to find the errors over here. ठीक है, errors are in that bold or in that underlined part only. errors जो आपके हैं वो उस bold और underlined part में ही हैं. ठीक है, तो वही आपको discuss करना है और वही वही आपको find out करना है. ठीक है, okay. चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब अपने सेशन के साथ. सो लेट्स बिगिन विद इट एंड हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. चलिए, हियर इट इज. Assigning additional work to an already overburdened worker, a mistake often made by inept managers, it increased the risk that the worker will become totally alienated and ceasing being productive altogether. बताओ, बताइए क्या गलती है यहाँ पे. And guys, for some people in this world, I want to say one thing. कुछ जो लोग बोलते हैं जिनको मेरा funny side acceptable नहीं है, for those haters in the world, I want to say, hate is gonna hate and I'll be what I am. ठीक है, चलो. Increases, okay? Increases, are you sure? Are you sure? Listen. हमारा subject क्या है? Assigning additional work to an already overburdened worker. है ना, हमारा काम दिया हुआ है भाई, हमारा काम दिया हुआ है यार. यहाँ पर क्या दिया, देखो assigning जो दिया हुआ है यहाँ पर, assigning additional work to an overburdened worker. इसके लिए उससे क्या हो रहा है? What happens? Assigning additional work to an already overburdened worker, what happens with it? So ये जो comma और comma के बीच में दिया हुआ है, that's a different thing, but whatever is given after it, this is related to it only. ठीक है, जो भी इसके बाद दिया हुआ है ना वो इसी से related है. ठीक है, जो भी इसके बाद दिया है that is related to this. So now you tell me what should be there. बताओ, it क्या होगा? it तो आना ही नहीं चाहिए. अच्छा बताओ, I'll tell you one small sentence, then you'll be able to identify what's the error here. ठीक है, if I say Rahul being a great student, comma, he is invited to the public fest. ये बताओ सेंटेंस में क्या गलती है? राहुल बीइंग अ ग्रेट स्टूडेंट, ही इज इनवाइटेड टू द पब्लिक फेस्ट. बताइए. इफ आई गिव यू दिस स्मॉल सेंटेंस to find out an error, Rahul being a great student, he is invited to the public fest. What is the error here? बताओ. Good morning. Is being, yes, that means you will not place he here, right? आपका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पर he नहीं लगाओगे. क्यों? क्योंकि the verb given over here is related to this subject only. ये जो verb है ये इसी subject से related है ना? So we will not place he here. Similarly, assigning additional work to an already overburdened worker, what happens then? It increase. अब ये it वापस क्यों लगा रहे हो यहाँ पे? Why are you? अच्छा, just remove this part. Remove the part that has commas in, जो commas के between में है. ठीक है? Whatever is given between two commas, just remove that part and then read the sentence. Assigning additional work to an already overburdened worker, it increase. Is that correct? Tell me. Is that correct? No, it should be it नहीं लगेगा. It should be increase the risk of, right? It should be increase the risk of. Don't you think so? You say it should be increases. No, तो यहाँ पर it का use नहीं करेंगे, है ना? यहाँ पर it का use नहीं करेंगे. Assigning additional work to an already overburdened worker increases the risk of या increase the risk of. बताओ.
it remove करो और increases लगाओ. Absolutely correct. We will place increases. Increases the risk that the worker will become. अच्छा अब देखो commas के बीच में कोई error है क्या? A mistake often made by inept managers. That's absolutely correct. A mistake often made by inept managers. That's absolutely correct. Then it increases नहीं होगा. Increases the risk that the worker will. बताओ. Will become. Are we trying to say anything in future tense? क्या हम future tense को यहाँ define करने की कोशिश कर रहे हैं? जल्दी बताएं. बताओ. क्या हम यहाँ पर future tense को define करने की कोशिश कर रहे हैं? Are we trying to define anything in future? No. The sentence is in past tense, assigning additional work to an already overburdened worker. First thing, a mistake often made by inept managers increases the risk of workers becoming. It should be increases the risk of workers becoming totally alienated. It should be what? The risk of workers becoming. ठीक है? क्या होगा? Workers becoming. It should be workers becoming totally alienated. Got it? ठीक है? ठीक है? Yes. तो sentence क्या बन रहा है? सुन लो मेरी बात. Assigning additional work to an already overburdened worker, a mistake often made by inept managers increases the risk that the worker increases the risk of workers becoming totally alienated and ceasing being productive altogether. ठीक है? Yeah. हाँ, एक it ने पूरा sentence structure change कर दिया. And why are we using becoming here? हम becoming क्यों use कर रहे हैं? I'll tell you the reason behind it. Because if you see तो and के बाद वहाँ पर क्या दिया हुआ है? Ceasing दिया हुआ है, right? Which is not underlined. And के बाद ceasing दिया हुआ है, which is not underlined, and therefore we have to write ing form of verb. यहाँ पर भी sentence का जो formation था वो ing का ही था. ठीक है? यहाँ भी ing था, sentence में यहाँ भी ing था, तो we'll have to write ing only, right? Yeah. Okay. चलो देखो. Assigning additional work to an already overburdened worker, a mistake often made by inept managers, increases the risk of workers becoming totally alienated and ceasing being productive altogether. Got it? ठीक है. कहाँ से लाते हो? बैंड बजा दिया क्वेश्चन ने. कोई बात नहीं, अगर यहाँ बैंड बज जाए तो बज जाए, एग्जाम में नहीं बजनी चाहिए, राइट? तो यहाँ पर बैंड बज रही, बजने दो उसको. ठीक है? चलो अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. मोर देन एनी अदर सिंगल फैक्टर्स इंक्रीजेस इन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट ऑयल that has been responsible of the inflation experienced by the United States in the last 10 years. बताइए यहाँ क्या गलती है? Quickly tell me what is the error in this sentence. Okay. Okay, factor. More than any other single factors increases in the price of import. More than any other single factors. Now, let's see single factors हो सकता है कि नहीं? Book आगे करो. Book. चलो भैया चलो. हाँ जी, मोर देन एनी. तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो क्या, मोर देन एनी. जब भी मोर देन एनी या मोर देन वन लिखा होता है, whenever we have more than any or more than one written, उसके बाद का noun should be singular. ठीक है? नाउन हो चाहे वर्ब हो, both of them will be in singular form. ठीक है? दोनों यूज होंगे कौन से फॉर्म में? सिंगुलर फॉर्म में. तो इस चीज का ध्यान रखेंगे. more than any noun or verb in singular form will be used, so it should be factor and not factors. ठीक है? एक चीज हो गई, यहाँ पर factors नहीं लगेगा, it should be factor. ठीक? increases in the more than any other single factor. increases in the price of import oil नहीं होता है.
ऑयल कैसा होता है? क्या कर रहे हो? कुछ कर रहे थे भाई, बताओ। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ, इंक्रीज, यहां पर देखो मेरी बात सुनो, द वर्ड इंक्रीजेस गिवन ओवर हियर इज अ नाउन। इंक्रीजेस यहाँ पर नाउन है, वर्ब नहीं है। इंक्रीजेस इन द प्राइस ऑफ, ठीक है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ नहीं, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ नहीं होगा। मोर देन एनी अदर सिंगल फैक्टर इंक्रीजेस इन द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड ऑयल, दैट हैज बीन का यूज होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, वो बाद में बात करेंगे। रिस्पॉन्सिबल के साथ फॉर लगता है, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, रिस्पॉन्सिबल फॉर, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। उसके अलावा बताओ क्या होगा? मोर देन एनी अदर सिंगल फैक्टर्स इंक्रीजेस इन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट ऑयल्स नहीं होता, इंपोर्टेड ऑयल होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, यहाँ पर लगेगा इंपोर्टेड ऑयल के ज्यादा, ऑयल इज अ नाउन, है ना, नाउन के पहले जो वर्ड लगा वो क्या होगा? इंपोर्टेड, दैट मीन्स दिस इज एन एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम बोलते हैं, एडजेक्टिव पास्ट फॉर्म का, ठीक है। तो इंपोर्टेड लगना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है, राइट। सो मोर देन एनी अदर फैक्टर इंक्रीजेस इन द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड ऑयल हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर, या दैट हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर, बताइए, दैट का रिक्वायरमेंट है। डू वी रिक्वायर दैट हियर? बताओ बाबू भाई, यस, डू वी रिक्वायर दैट हियर? क्या हमें दैट की जरूरत है? ओके देखो मेरी बात सुनो, इंक्रीजेस जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये नाउन दिया हुआ है। इंक्रीजेस, ये फैक्टर्स जो बताए थे ना, अलग अलग फैक्टर, उनमें से एक फैक्टर है ये, ठीक है। हम कह रहे थे मोर देन एनी फैक्टर, एनी सिंगल फैक्टर, किसी भी और फैक्टर से ज्यादा, सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है वो है इंक्रीजेस इन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट ऑयल। लिसन टू मी क्लियरली गाइज, लिसन टू मी क्लियरली, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सो इट सेज मोर देन एनी अदर सिंगल फैक्टर्स, बाकी किसी भी एक फैक्टर से सबसे ज्यादा क्या हुआ है? इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट ऑयल। सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ा है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जो है वो है इंक्रीजेस इन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट ऑयल, ठीक है। दिस इज द कंडीशन, सो दैट इज अ नाउन बाबा, दैट इज अ नाउन, ठीक है। वो क्या है? नाउन है, तो इंक्रीजेस नहीं चेंज करेंगे। हाँ, रिस्पॉन्सिबल के साथ फॉर लगेगा, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, और दैट की रिक्वायरमेंट इस सेंटेंस में नहीं है, नहीं है, ठीक है। सो इट सेज व्हाट? मोर देन any other single factor increases in the price of imported oil, that को हटा दो, has been responsible for the inflation experienced by the United States in the last 10 years. Got it? Got it? Got it or no got it? बताओ। देखो ये थोड़ा सा जो है तो दिक्कत वाला क्वेश्चन है, तो इसको समझेंगे तभी ये सॉल्व होगा, ऐसे नहीं होने का है, ठीक है, ठीक है। देखो आज हमने क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी बनाए हैं यार, इसलिए बनाए ताकि आप लोग को मजा आए क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। करेक्ट सेंटेंस पढ़ दूं मैं एक बार, मोर देन एनी अदर, मैं सेंटेंस का मीनिंग बता रही हूँ, ठीक है, आपको सुनो। मोर देन एनी अदर सिंगल फैक्टर्स, सारे सिंगल फैक्टर्स में से सबसे ज्यादा, मोर देन एनी अदर सिंगल फैक्टर्स मतलब सारे सिंगल फैक्टर्स में से सबसे ज्यादा increases in the price of imported oil has been responsible for the inflation experience. जो import oil के price में जो increase आया है, ये सबसे ज्यादा responsible है एक inflation के लिए जो कि US experience कर रहा है. This is the meaning, ठीक है? This is the meaning. Now, more than, अब sentence हम correct पढ़ रहे हैं, more than any other single factor increases in the price of imported oil has been responsible for the inflation experienced by the United States in the last 10 years. Got it, guys? Okay. Okay. नहीं भाई, that की जरूरत क्या है रुचिका? ठीक है, चलो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. Let's move on to the next one, guys. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया. द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एड्स एट द जॉब साइट थ्रू डेली कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल इज रिमोट. नो वन टू डेट इज नोन टू कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज फ्रॉम कैजुअल कॉन्टैक्ट. दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, ठीक है, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है. कि तुम हाथ में ला लोगे तो तुमको एड्स हो जाएगा. पागल हो क्या तुम यार? बताइए क्या होगा. यहाँ है द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एड्स. पॉसिबिलिटी जो है कॉन्ट्रैक्टिंग एड्स की, मतलब एड्स को अपने
एक इंसान के पास से दूसरे इंसान में जाने की, एट द जॉब साइट थ्रू डेली कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड इज रिमोट। मतलब ये सोचते हैं कि जॉब साइट पर कोई एक इंसान है जिसको एड्स है, अब उससे हाथ मिला लो तो तुमको भी एड्स हो जाएगा। सनक गए हो क्या, बुद्धि कमी हो गई है क्या, है ना। फिर उसके बाद हाँ लगता है मुझे नो वन टू डेट इज नॉट, आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं आया है जो प्रूव कर सके, या फिर कोई भी ऐसा इंसान नहीं आया है जिसने ये बताया हो कि हाथ मिलाने से एड्स हो जाता है, ठीक है। नो वन टू डेट इज नोन टू कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज फ्रॉम कैजुअल कॉन्टैक्ट। कैजुअल कॉन्टैक्ट से अगर आप करते हैं तो बताओ क्या होगा। द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग AIDS at the job site through daily contact with an infected individual is remote. No one to date is known to contract the disease. No one to date भी सही है भाई, उसमें to date में कोई गलती नहीं है। No one to date, this is correct, इसमें कोई गलती नहीं है। No one to date आप लगा सकते हो, that is not an error guys, that is not an error, ठीक है। So we can make out what's the error here. Okay. What is the error here? No one to date is known to contract, नहीं, is known to have contracted, ठीक है। कोई ऐसा नहीं हुआ है जिसको ओन, जिसने ओन किया है उसको, जिसमें ट्रांसफर हुआ है। तो यहाँ पर टू डेट तो करेक्ट है, लेकिन टू हैव कॉन्ट्रैक्टेड का यूज करेंगे बिकॉज द वन हु गिव्स इट इज नॉट मेंशन्ड, राइट। आप देख लो यहाँ पर आपको कोई भी मेंशन नहीं किया गया है, और यहाँ पर टू के साथ जब हैव लग जाता है, दैट मीन्स टू के साथ जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, द फॉलोइंग वर्ब गोज इन वर्ब्स थर्ड फॉर्म, इसलिए हम कॉन्ट्रैक्टेड लगा रहे हैं। समझे मेरी बात, क्या हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, सुनो मेरी बात। No one to date is known to have contracted the disease from casual contact. Now the one who does that, जो इंसान ये करता है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो एक इंसान है, जो इंडिविजुअल है जिसके अंदर पहले से एड्स है, जिसको एड्स है ना, वो अगर आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको एड्स हो जाएगा। नाउ द डूअर इज मिसिंग ओवर हियर, राइट। आप देख सकते हैं डूअर मिसिंग है, तो टू के साथ हमें हैव लगाना पड़ेगा, एंड देन द सेंटेंस विल गो टू वर्ब्स थर्ड फॉर्म एंड दिस विल बिकम अ पैसिव सेंटेंस, ठीक है। नो वन टू डेट इज नोन टू हैव कॉन्ट्रैक्टेड द डिजीज थ्रू कैजुअल, अच्छा फ्रॉम नहीं होता है ना, फ्रॉम नहीं होता है, हम क्या बोलते हैं, हाँ नाम लीजिए, नागेश्वर राव, नाम ले ली तुम्हारा, क्या करें बताओ। अरे मेरी सर्दी को छोड़ दो, वो ऐसी बीमारी हो गई है कि जब हम मरेंगे तभी भी रहेगी शायद, ठीक है। बताओ क्या होगा, स्किप करने के मार्क्स मिल जाएंगे। दत्त टू डेट क्या होता है, टू डेट का मतलब होता है अप टू डेट, ठीक है। टू डेट का मतलब होता है अप टू डेट। अच्छा, थ्रू होता है एब्सोल्युटली करेक्ट, जब आपको कोई डिजीज मिलती है तो फ्रॉम नहीं मिलती, यू गेट द डिजीज थ्रू समथिंग, ठीक है। आपको डिजीज किसी चीज से मिलती है। द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एड्स एट द जॉब साइट थ्रू डेली कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल इज रिमोट। नो वन टू डेट इज नोन टू हैव कॉन्ट्रैक्टेड द डिजीज थ्रू कैजुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है, गॉट इट, ठीक है। तो वी हैव टू के साथ हैव, और हैव के बाद कॉन्ट्रैक्टेड, और उसके बाद लगेगा थ्रू, ठीक है, ठीक है। ओके चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे भाई मैम ऐसा मत बोलिए, सुनो, हम मेरे कर्म इतने अच्छे नहीं है कि भगवान हमको अभी तुरंत उठा ले, ठीक है, ठीक है। मुझे भरोसा है कि मैं इस धरती पे बहुत टाइम तक रहने वाली हूँ। अच्छे लोगों को इंसान उठाता है यार, काय को परेशान, हमने बहुत गंद फैलाया। चलो बताओ क्या होगा। Unlike soprano and tenor opera singers whose high notes are a source of fame and notoriety, contralto and bass singers is distinguished by the lowest note of their voices. बताओ क्या होगा यहाँ पर, ओके अरे किंग जेवियर तुम क्यों बदतमीजी कर रहे थे यार, तुमको ब्लॉक कर दिया गया, बताओ। ओके चलिए यहाँ क्या होगा बताइए। ओके यस एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो कॉन्ट्राल्टो एंड बेस सिंगर्स, दो लोगों की बात हो रही है, राइट। दो अलग अलग चीजों की बात हो रही है, कॉन्ट्राल्टो हो गए,
ठीक है, किसी तरह का गाना गाते होंगे भाई, ये हमको नहीं पता, ठीक है। और फिर उसके बाद बेस सिंगर्स, बेस सिंगर्स मतलब जो बेस वाला गाना गाते ऐसा वाला नहीं, ठीक है, दी ऑपोजिट वंस, वो तो ऑपेरा होते हैं। फिर बेस सिंगर्स, इज नहीं होगा, आर लगाएंगे, एब्सोल्युटली करेक्ट, इज नहीं होगा, आर लगाएंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टू पीपल एंड से जोड़ के, है ना, दो लोगों की बात करें, एक कॉन्ट्राक्ट हो गए, दूसरे बेस सिंगर्स हो गए। आर डिस्टिंग्विश, अच्छा बाय से दिया हुआ है, व्हेनेवर द डूअर इज गिवन, डूअर जभी भी बाय से इंट्रोड्यूस्ड होता है, व्हेनेवर द डूअर इज इंट्रोड्यूस्ड यूजिंग द वर्ड बाय, तब हम लगाते हैं क्या, तब हम लगाते हैं डिस्टिंग्विश्ड, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो ये होगा क्या, डिस्टिंग्विश्ड का यूज करेंगे, ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड का यूज करेंगे। कॉन्ट्राल्टो एंड बेस सिंगर्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द लोएस्ट टोन, लोएस्ट नोट ऑफ देयर वॉइसेस। लोएस्ट नोट होता है, लोएस्ट नोट्स होता है। देखो जैसे हाई नोट्स थे ना, देखो सेंटेंस के पहले में क्या दिया हुआ था, हाई नोट्स दिया हुआ था, तो यहाँ पे भी तो लोएस्ट नोट्स होगा ना, नोट्स होगा ना, बिकॉज देखो उसके आगे भी क्या लिखा हुआ है, देयर वॉइसेस लिखा है, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट पीपल, और अलग अलग लोगों के अलग अलग नोट्स होते हैं। भाई मेरी आवाज में बेस है, किसी एक अंतरा मैम की आवाज में बहुत स्वीटनेस है ना, हम बोलते तो ऐसा लगता है मर्दी बात कर रहा है, मतलब बोल सॉरी टू से दैट, लेकिन अंतरा मैम बात करती है तो दैट्स रियली स्वीट, है ना। सो होता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो तो सॉन्ग्स तो ठीक है भाई, लोएस्ट नोट्स होते हैं जब हम गाना गाते हैं ना, तो गाने में नोट्स होते हैं, कोई हाई नोट होता है, कोई लो नोट होता है, कोई मिड नोट होता है, हमें नहीं पता, मैंने कभी गाना गाया नहीं है, ठीक है। सो इट शुड बी व्हाट, कॉन्ट्राल्टो एंड बेस सिंगर्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द लोएस्ट नोट्स ऑफ देयर वॉइस, ठीक है। 3 एरर्स वर देयर इन दिस सेंटेंस। जल्दी से ले चलो हमें अगले क्वेश्चन की तरफ। The nuclear accident at Chernobyl released clouds of radioactive particles into the atmosphere, contaminate agricultural products, grow within much of the USSR, as well as products grow in countries as far away Italy. बताओ क्या होगा? ओके, वॉइसेस नहीं आएगा बाबा, देयर वॉइसेस है ना, दो अलग अलग लोग थे ना वहाँ पे, एक कॉन्ट्राल्टो था, दूसरा बेस सिंगर्स थे, तो उनके लिए देयर लगा था, which was absolutely correct, ठीक है। ओके, फटा हुआ स्पीकर मतलब हम अपनी बेइज्जती करें ना तो वो ठीक है, लेकिन तुम नहीं करोगे, इतना समझ लो, जो बोल रहे हो ना तुम बोलो मत। चलो बताओ क्या होगा। डूअर मतलब करता, दैट मीन्स द वन हु परफॉर्म्स द टास्क, जो काम करता है उसको हम बोलते हैं डूअर, ठीक है। अभी बताओ, द न्यूक्लियर एक्सीडेंट बाय द Chernobyl released clouds of radioactive particles into the atmosphere, contaminate agriculture. No, एटमॉस्फेयर में रिलीज करे गए थे, तो वो क्या कर रहे थे, कंटामिनेटिंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो इसका मतलब हो गया दिस शुड बी कंटामिनेटिंग, it should be contaminating, absolutely correct. I know guys, आपको आज थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जैसे ही ये सेशन खत्म हो जाए, शाम को जब आप बैठोगे बिना किसी दिमाग के टेंशन के, तब एक बार सिर्फ क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना, ठीक है। एक बार क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना, तो ये पता है जब भी I'm not talking only about English, I'm talking about maths, I'm talking about reasoning, I'm talking about GA, I'm talking about English, every subject, whenever you think that certain questions are difficult for you, जब भी आपको ऐसा लगता है कि जो questions वहाँ पर लिखे हुए हैं वो questions आपके लिए difficult हैं, तो ये काम जरूर किया करो कि शाम को बैठ के एक बार उन questions को अपने आप solve करने की कोशिश किया करो। Maybe this happens to be अभी आपसे solve नहीं हो रहा है, लेकिन शाम को when you revise them, then you will be able to solve them, ठीक है। Okay? Okay, dokie. चलो बताओ क्या हुआ यहाँ पर। Contaminating, absolutely correct. Contaminating agricultural products grow within. No. जहाँ पर उगते हैं, कहाँ पर, किसी चीज, grown within. It should not be growth. It should not be growth. Agricultural products growth within नहीं, grown within. जो USSR, much of the USSR के अंदर अंदर जो उगाए जाते हैं, within. तो grown होगा यहाँ पर, ठीक है। Grown within much of the USSR, as well as products grow in countries. अच्छा, grow in countries again क्या होगा, grown in countries. एक तो हमने बताया था आपको क्या, and why are we using grown here guys, हम क्यों grown लगा रहे हैं, because if you identify who is doing that,
कौन है डूअर है, कौन ग्रो कर रहा है, डू यू नो दैट, बताओ। नहीं हमें वैसे तो पता है कि भाई हाँ कौन करता है, फार्मर्स ग्रो करते हैं, हमें वैसे तो पता है कि फार्मर्स ग्रो करते हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज यहाँ पर डूअर लिखा हुआ है क्या, इज द डूअर मेंशन्ड हियर, बताओ, इज द डूअर मेंशन्ड हियर। ये नागेश्वर राव, ये नाम ही लेने में खुश हो भाई तुम, क्या बात क्या बात क्या बात। चलो बताओ क्या होगा यहाँ पर, यस, एंड देयरफॉर डूअर इज नॉट गिवन, वी नो हु ग्रोज इट, हमें पता है कौन ग्रो करता है भाई, हमें पता है फार्मर्स ग्रो करते हैं, बट दैट इज नॉट मेंशन इन द सेंटेंस, राइट, वो मेंशन नहीं है सेंटेंस में, सिर्फ इसी वजह से हम ग्रोन वर्ड यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग ग्रो, ठीक है। विद इन मच ऑफ द यूएसएसआर एज वेल एज प्रोडक्ट्स ग्रोन इन कंट्रीज एज फार अवे, इटली नहीं, एज फार एज होता है ना, एज फार अवे एज लगाते हैं, जब लगाते हैं तो इसको, ठीक है, wherever you use far away or wherever you use a positive degree, ठीक है, far, farther, farthest, समझ में आता है, far is a positive degree, farther is a comparative degree, farthest is a superlative degree, तो जब as और as लगता है और अगर यहाँ पर positive degree लगी हुई है, अगर हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, मालूम होगा आपको, है ना, तो उन 3 डिग्रीज में जब भी हम किसका यूज करते हैं, whenever we use what, whenever we use what, whenever we use a positive degree with as, तो वो दोनों तरफ आएगा, ठीक है, जब पॉजिटिव डिग्री as के साथ यूज होती है तो उसके दोनों तरफ as आता है, as far away as, ठीक है। सो आपका सेंटेंस करेक्ट जो आ रहा है वो है, द न्यूक्लियर एक्सीडेंट एट चेर्नोबिल रिलीज क्लाउड्स ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स इनटू द एटमॉस्फेयर कंटामिनेटिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ग्रोन विद इन मच ऑफ द यूएसएसआर एज वेल एज प्रोडक्ट्स ग्रोन इन कंट्रीज एज फार अवे एज इटली। गॉट इट गाइस, बताओ, हैव यू गॉट इट। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम, इसके बाद चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लेट्स मूव ऑन। हियर इज, इन द पास्ट फ्यू इयर्स सिग्निफिकेंट चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर्स इकोनॉमी, दीज चेंजेस विल प्रोफाउंडली इफेक्ट द कैरेक्टर्स ऑफ आवर लेबर यूनियंस एंड इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल लाइफ। व्हाट्स द एरर, बताओ, व्हाट इज द एरर ओवर हियर, एरर क्या है यहाँ पर, जल्दी से बताइए, क्विकली। ओके, डेडली एक्सीडेंट्स मैम, यस संचित टंडन, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। चलो बताओ क्या होगा यहाँ पर, in the past few years significant changes have taken place in the organization of ours economy, it should not be ours economy, it should be economy लगा हुआ है ना, economy is a noun, है ना। I'll tell you the reason, I'll tell you the difference between our and ours today, ठीक है। इसी तरह से my and mine is there, your and yours is there, his and her is there, her and hers is there, right, ऐसा यूज करेंगे। तो देखो, when noun is given and before that you have to use, तो आप are यूज करते हो, ठीक है। So these are called possessive adjectives, these are called possessive adjectives, ठीक है। are हो गया, your हो गया, my हो गया, his हो गया, her हो गया, and their, ठीक है। ours is used after the noun, ours का यूज होता है जब noun already आ चुका होता है, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं possessive case, possessive case, इसको pronoun बोलते हैं, possessive pronoun, ठीक है। and we have ours, mine, yours, hers, its and theirs in it, ये सब होता है इसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हमें लगाना है दिस पेन इज डैश एंड दिस इज डैश पेन, सो यू नो नाउन इज हियर और नाउन के बाद लगाना है, नाउन इज हियर नाउन के बाद लगाना है, प्रोनाउन नाउन के बाद ही आता है, तो यहाँ आप लगाओगे पोजेसिव केसेस, ठीक है, माइन, योर्स, आर्स एटसेट्रा, ठीक है, ये सब। और दिस इज डैश पेन, नाउन के पहले जो आता है दैट इज एन एडजेक्टिव, तो यहाँ पर हम लगाते हैं माई, योर, his, her, their, ठीक है, ऐसा यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आर एंड आर्स, योर एंड योर्स, ठीक है, ये डिफरेंस होता है इसके बीच में। सो अब बताइए आप क्या लगाना है यहाँ पर आर इज करेक्ट, यहाँ पर आर ही लगेगा हमारा, आर इकोनॉमी, दीज चेंजेस विल प्रोफाउंडली इफेक्ट, नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इफेक्ट एंड अफेक्ट, ठीक है।
इफेक्ट और अफेक्ट के बीच में एक डिफरेंस होता है और इसके बीच में लोगों को काफी ज्यादा क्या होती है, परेशानी होती है. नाउ व्हेरेवर इट स्टार्ट्स विद ई, जब ई से स्टार्ट होता है दिस इज अ नाउन. थ्रो इम्पैक्ट, प्रभाव डालना, प्रभाव डालना. ठीक है, सो यहाँ पर प्रोफाउंडली लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रोफाउंडली लिखा हुआ है एज यू कैन सी. सो व्हाट शुड बी देयर, यहाँ पर प्रोफाउंडली लिखा हुआ है. नाउ यू नो प्रोफाउंडली इज अ, प्रोफाउंडली इज व्हाट, प्रोफाउंडली इज एन एडवर्ब, और एडवर्ब के बाद जो लगेगा वो वर्ब होना चाहिए था, है ना. सो इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पर, इट शुड बी अफेक्ट, इट शुड बी अफेक्ट का यूज करेंगे. ठीक है, अब देखो दीज चेंजेस विल प्रोफाउंडली अफेक्ट द कैरेक्टर्स ऑफ आवर लेबर यूनियंस, कैरेक्टर्स ऑफ आवर लेबर यूनियंस एंड इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल लाइफ. बताओ, जब हमने बोला दीज चेंजेस विल प्रोफाउंडली इफेक्ट, जब अफेक्ट का यूज कर रहे हो और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, सो हाउ कम एंड के बाद वाला वर्ब इन्फ्लुएंसिंग हो जाएगा? How is that possible that this becomes influencing? ये भी influencing नहीं होगा, ये भी verb के first form में ही लगाओ भाई, है ना. So it should be influence. ये क्या लगेगा? Influence. So our economy, these changes will profoundly affect the characters of our labor unions and influence consumer and industrial life. और कोई गलती आपको लग रहा है? बताओ. Okay. So this is it. Sentence देखो, in the past few years significant changes have taken place in the organization of our economy. These changes will profoundly affect the characters of our labor unions and influence consumer and industrial life. ठीक है, so these are the three errors in this sentence. Got it? That's it for today guys. Thanks a lot for joining me here. अब हम चलेंगे. Okay. कंप्यूटर जी को समझा तो परेशान कर रहे थे क्या बाबा जब हम बोर्ड पे थे? तुम नहीं करा, और करने दो यार, थोड़ा बहुत कर देते हैं वो लोग, कोई बात नहीं. चलिए, that's it for today guys. Thanks a lot for joining me here. Bye bye. Take care of yourselves and keep that loving smile on your face. और जिसने अभी वीडियो लाइक नहीं किया ना, लाइक कर देना, वरना क्या कर लेंगे हम? कुछ नहीं. ठीक है, बस लाइक कर देना. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर.